Good evening, everyone. Hope we are doing well. It's my privilege to welcome you, all of you, to today's webinar on understanding about the diabetes condition and managing effectively. As you know, diabetes is a condition that touches the life of millions, either directly or indirectly. So, today's our goal is to provide clarity, share valuable insights, equipped with your practical strategies, understanding about the diabetics matters. So, firstly, welcome to our फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्वस्ति सुकुम। स्वस्ति सुकुम क्या है? स्वस्ति सुकुम एक प्लेटफॉर्म जहां हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं अबाउट द वेरियस डिसीजेस, न्यूट्रिशन क्या है, सभी एक डिटेल नॉलेज, एक स्ट्रेटेजिक पूरा तरीके से। ये हमारा एक मेन मोटिव रहता है स्वस्ति सुकुम का कि एक जगह से कनेक्ट होके जहां पर हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस एंड मैनी अदर मेंबर्स जहां पर एक ही जगह से कनेक्ट होके आपको अलग अलग जगह पे सारी तरह की न्यूट्रिशन के बारे में या किसी भी डिसीजेस के बारे में एक अच्छे से पूरा डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो वेलकम डॉक्टर अर्चना मैम। नेक्स्ट वी आर Next, we are delighted to have a Manju ma'am, Head Earning and Development Manager at Healthify Me. As you know, she is also a Chief Diabetic Educator with Max Hospital over the 16 years, Master Trainer for Diabetic Education over the 13 plus year of clinical experience. So, welcome Manju ma'am. Thank you, Gitanjali. Thank you so much. I'm privileged to be Thank here. you, ma'am. Thank you, Archana, for inviting me for this talk. All mine, should I use Hindi or English? Both, Didi. Whatever you are comfortable, you can use. Yeah. I'm comfortable in both. I will appreciate क्योंकि जितना interaction रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, है ना? Yes, yes. All right. I'm just going to my PPT. Give me 1 minute. Okay. All right. Is my screen visible? हाँ जी। Yes, ma'am. Perfect. So, आज का जो हमारा मोटो है वो ये है कि हम डायबिटीज के बारे में जाने, बिकॉज 14 नवंबर जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे था। वर्ल्ड डायबिटीज डे हम लोग मनाते हैं। बेंटिंग और बेस्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन का इजाद किया था, तो उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन में वर्ल्ड डायबिटीज डे दुनिया भर में मनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो सबसे टॉप पर आ गया है डायबिटीज में। पहले चाइना होता था, अब इंडिया इतना ज्यादा डायबिटीज हो गई है कि पीपल एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज। सो वी हैव टू टेक एन एक्शन विद इट। वी हैव टू इंक्रीज अवेयरनेस दैट हाउ वी कैन डू। और इस ईयर का थीम था कि हाउ टू लिव हेल्दी विद डायबिटीज, अलोंग विद डायबिटीज। टॉपिक दिया गया आज वो है कि मैनेजमेंट डायबिटीज का ट्रीटमेंट और उसके मैनेजमेंट के बारे में हमें क्या करना चाहिए। Diabetes itself is not a disease, it's a metabolic disorder, but it can give growth to any disease. Like, you must be knowing diabetic patients are prone to have kidney disease, heart disease. I will say every 10th person of diabetic is suffering with neuropathy, the nerve problem. Every 5th person is suffering with heart disease along with diabetes. Every 10th person is suffering with kidney disease with diabetes. So diabetes, we have to understand that it is a group of disorders. If we are not managing it well, if we are not looking into it, we can land up into a lot of issues. And once you land up in diabetes, the chances are very less to go out of it. So we have to live with that diabetes. But here we are there to understand that how we can live happy and healthy with diabetes, without reaching to any of these complications like neuropathy, nerves में problem, heart problem or the kidney problem. Many of them are suffering with pre-diabetes in India, which are not known that they are diabetes. So pre-diabetes is the condition. Sorry तो दीदी एक्चुअली व्हाट्सएप चैट ही दिख रहा है अभी, आपने शेयर किया है क्या? हाँ, मैंने पूछा स्लाइड दिख रहा है? हाँ, नहीं सिर्फ अभी व्हाट्सएप चैट ही दिख रहा है। I am extremely sorry. Yeah, no issues, no issues. That's what I asked, but मुझे तो स्क्रीन में वही दिख रहा है। Okay, let me say share. As I've just mentioned that, yeah, I just mentioned that diabetes itself is a group of disorder. If we don't manage it well, you want me to again start with the introduction, Archana?
You can do you can Okay. do it. Yeah. Thank you. All right. All right. So, thank you so much, Archana ji, inviting me for this talk. And Right. I'm really honored to be here. Diabetes is very close to me. Archana knows that she has been my very brilliant student. So she knows that diabetes is very close to me, and I just go deep dive into it. Hmm. Now, 14th November was World Diabetes Day, which that's how we are here to increase the awareness about diabetes. And diabetes itself is not a disease, it's a metabolic disorder. So if we start working on our lifestyle, we make sure that we regulate our things, we can live happy and healthy with diabetes. Worldwide, we have reached to top, on the top of diabetes condition worldwide. Earlier, there used to be China, but now India is leading, which is not a good news. So we have to increase and do these kind of activities more. And as 14 November is a World Diabetes Day, where the insulin inventors have been born on this day. Their name is Benting and Best. They were twin brothers. So when who invented insulin, and then they changed the therapy completely for diabetes management. We all know I should say every 10th person is suffering with the kidney disease. Every third person with diabetes is suffering with neuropathy disease, and every fifth person is suffering with the cardiac disease. So we have to look into these figures very closely. And what we can do is, if we manage our diabetes well, we can prevent these diabetes complications. So target is that let's understand what is diabetes and how it affect our system. We have doctor coming for it, Archana, if I'm not wrong, who is going to talk in detail. But pre-diabetes is one condition which we are not aware about that we have diabetes. Okay. In this, we look into like obesity you're seeing now. Earlier, India used to be, malnourished country, but now we are overfed. So the obesity is gone really up, and which is closely related with pre-diabetes condition. If you look at history, if you look at between all of us, I am sure every second person has got a family member suffering with diabetes. Correct? Even in my family, my dad is diabetic. So we are very closely related to diabetes, and with our bad lifestyle, we get into diabetes very quickly. So our objective is to prevent diabetes also. प्री डायबिटीज कंडीशन होती है जब आपका शुगर लेवल उतना बड़ा नहीं है, डायबिटीज नहीं है, लेकिन HbA1c बिटवीन 5.7 to 6.4 आ गया है. So what is HbA1c? HbA1c is glycosylated hemoglobin, which is glycation of your red blood cells with glucose. So अगर ये 5.7 to 6.4 की रेंज में आ जाता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्री डायबिटीज. ओबेसिटी के साथ में हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस देखते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है सफिशिएंट, लेकिन हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव फैट है वो उस इंसुलिन को यूटिलाइज बॉडी में नहीं होने दे. ऑलराइट. सो yeah, so we have to be careful about if we reduce obesity, if we manage our weight, I am sure we can prevent landing up into diabetes and increasing this number which is going up. Nupur, can you please mute yourself? So, risk factors to landing up into diabetes is pre-diabetes condition, as I just mentioned. If you have heart disease, if you have blood pressure, if your good cholesterol is less, if you have high triglyceride, if you are overweight, if you have gestational diabetes, or you have got obese baby, or if you have PCOD, or you have depression, or many other factors. Sometimes, there's a stress management, smoking, not sleeping or sleeping too much, or not doing exercise. These are the contributory factors to take you towards diabetes. So if we start taking action on these parameters, which is changeable, which is modifiable, I am sure we can reduce the number that India is not growing further on diabetes. So target range, HbA1c, whatever the ADA guidelines, American Diabetes Association guidelines, or RSSDI guidelines, they talk about HbA1c. If your HbA1c is below 5.7, you are normal, you are non-diabetic person. But if your HbA1c ranges between 5.7 to 6.4,
you are pre-diabetic. So here, if we don't take an action, couple of years down the line, we may land up into diabetes. And more than 6.5 or higher is diabetes. Definitely, once you land up in diabetes, so now we have to see that how we can live happy and healthy with diabetes. So these are the 4 major pillars of diabetes management. First, most important is our diet. Because whatever food we eat, it convert into glucose. All right. And then this glucose, with the help of insulin, convert into energy. All right. That's why you must have heard diabetic are saying when sugars are high, they feel very drained out, they feel low energy because the food is not converting into energy properly. So 30%, 50%, 90%, depending on HbA1c, we assess that how much food has been left as a glucose, not converting into energy. Second step is exercise. When we exercise, we reduce the visceral fat, we reduce the subcutaneous fat. With result, our insulin sensitivity improves and the response to glucose and insulin is better. So sugars become better. Even somebody has diabetes, if when they exercise, the requirement of medication goes down. They may go off medicine also. Then third step is medication. Medication, depending on your doctor, what they have given you, it can be oral tablets, it can be insulin injection, depending on your condition. And the fourth and most important step is monitoring. Taking medicine, what my doctor has advised, I'm exercising, I'm taking my diet properly, but my sugars are not in control. So the whole exercise has gone waste. Agree? That is why we need to keep a check on what is happening. So there are certain criteria or guidelines to talk about that when we should check and what should be our target values. There's no diabetic diet as such. The healthy balanced diet which we Indian consume, especially the Indian diet with a vast variety of cereals, vast variety of vegetables and fruits, that is the best diet for any diabetic. Lot of time I do hear diabetic patients say that we should not eat banana, we should not eat mango, we should not eat rice. These all are myth. I'm sure we all know diabetic patients eat Marie biscuit very religiously. In their ration list, you will find there's always a Marie biscuit because, okay, she is diabetic at home, Marie biscuit has to be there. So Marie biscuit, end of the day, give you only glucose, no other nutrient. Whereas if you take banana, one banana is equal to eating 4 Marie biscuit, calorie wise. But when you're eating banana, you're getting potassium, you're getting phytonutrients, you are getting fiber, and the GI, glycemic index is moderate, not high glycemic index. So again, this is just want to highlight this big myth. Even mango, there was a lot of debate and research going on mango and diabetes. So any fruit, if we are taking in a natural form, we are not juicing down, we are not shaking it, we are not making, pulp out of it. It has got moderate glycemic index. It doesn't have high glycemic index. High glycemic index is tarbooj, watermelon. But watermelon has got low glycemic load. What do you mean by glycemic load? The amount of glucose in it. So amount of glucose is pretty less in watermelon. The number of glucose is lesser, but the speed is higher. So healthy eating plate, which has been acceptable by all the big associations, that you fill your half plate with fiber, 1/4 of carbohydrate and 1/4 of protein. And using complex form of carbohydrate is easy because it will not convert glucose directly or quickly into carbohydrate directly or quickly into glucose. Now, second step is exercise. So exercise, depending on the portability or a condition of a person. If person is very high weight, we can't think about running, exercising too much aggressively. So we can teach them sitting exercise and working out, stretching exercise.
Normal walk is the best exercise for any age group in any medical condition. When we exercise, we improve insulin sensitivity. That is very important to understand. We increases good cholesterol. And most important, usually type 2s are elderly, so we improve their bone health also by making their better calcium absorption. Okay. Then pharmacological therapy. So pharmacological therapy, I've told you, there's a oral glucose lowering agents and there's insulin. There are only two categories which work best for diabetes management allopathically. So the first most important drug we use is metformin. You must have heard about glyphosate or glycomet or cetapin. They are a metformin combination. Metformin is the first medication to begin with any diabetes. It reduces hepatic glucose production, so it improves insulin sensitivity. It improves your metabolic condition. That is why metformin is very commonly used for PCOS also. Earlier, sulfonylurea used to be the second drug of choice, but now the number has been shifted. So DPP-4, which reduces the degeneration of incretin and it protect beta cells of pancreas. SGLT2 inhibitors. SGLT2 inhibitors are inhibitors which, allow kidneys to release glucose. Our kidney has got analyzer. When glucose is going to kidney because of excessive glucose in the blood throw glucose into kidneys. Now, kidney has got an assessor that glucose is an important particle. This is supposed to be converted into energy, but by mistake, it is going out. So what SGLT2 does, it reabsorb that glucose. With this reabsorption, again, there's a more glucose in the blood. So this inhibitors are SGLT2 inhibitors are restricting that reabsorption. Because of the restriction of reabsorption, the excessive glucose is passing in urine, which is making kidneys to be safe, heart to be safe, lose weight. So this is a wonder drug at present, which help type 2 diabetes to lose weight. And you must have heard a common name, empagliflozin, dapagliflozin. They are commonly used nowadays. Now, GLP-1 receptors. This is another wonder drug for type 2 diabetes to lose fat, to improve insulin sensitivity. You must have heard about Mounjaro, Trulicity, and Ozempic. There are a lot of conflicts are occurring on newspaper that people are using it for weight loss. It is supposed to be a diabetes treatment drug. But a lot of people, Bollywood, Hollywood, they are using this for weight management. All right. In India, Mounjaro is about to come because it is very, very expensive. It has been exported from outside. So these are injectable, basically. GLP-1 are injectable, but people are using happily. So after this, now we reaches to sulfonylurea. Sulfonylurea, basically, it squeezes pancreas to release insulin. So with this, if sufficient glucose is not there, the chances of hypoglycemia is pretty high. And that is why sulfonyl, and because of hypoglycemia or because of this excessive insulin release, there is weight gain. So weight gain for diabetic means heart disease, risk of heart disease, risk of stroke. That is why sulfonyl group has been fallen down now. Pioglitazone is another group. You must have heard about Pios or, Pioglar. They're commonly found with this commercial name. They used to be a very best kind of oral hypoglycemic agent. But now, because of the, side effect of bladder cancer or has been found with this. So internationally, this is banned. But in India, we still use it with very selected kind of clientage, like patient who are very lean, young, no family history of cancer. We are using only for them.
Then AGI, this is acarbose glucose inhibitors. So basically what they does, they slow down the carbohydrates absorption in intestine. All right. But it does have a GI effect. GLP does have a GI effect. And SGLT2 does have a infection chances of penile tip or vaginal area. So we always highlight to the patient that if you're using these medication, maintain your hygiene, hydrate well, take sufficient water so that your urine is not concentrated with too much of glucose and give you infection. All right. Any question anybody has regarding to OHS? I hope all are understanding this. बेटा पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ रहे हैं तो. Okay, no problem. We'll take the question at the end, Archana. So, second step is after OHS, there are insulin. Insulin is life-saving for type 1 diabetes. Insulin can be used for type 2 diabetes also, but when HbA1c is high or any complication is there, insulin is safe for pregnancy and breastfeeding. Insulin is best for any surgery. Wherever we want a good control, and we are closely monitoring insulin work best. Okay. Now, what is the role of insulin? Anybody like to answer? Ma'am, regulating the sugar. Regulating the sugar. The sugar. Correct. So, role of insulin is to pick up the glucose from the blood and take it into the cell and convert into energy. And that is how it regulates sugar. So whenever sugars are coming, if I'm not diabetes, I'm eating gulab jamun, doesn't mean my sugar should go 250. My insulin, more insulin has to come to regulate that extra glucose. Okay. If I'm not eating, I'm fasting today. So my automatically my body will release lesser insulin because there's no extra glucose is coming. Fine. So that is how insulin work in our system. Now, when our body is not making sufficient insulin or we need a good control, maybe we have to go to under surgery in a sensitive condition, pregnancy or something like that. So insulin work best because it has got no side effect. Okay, that's a myth that people say that insulin has got side effect. Insulin is the best and most safest element. But why do we restrict if it is so good? Because we have to monitor and we have to understand what is the requirement. I've just given one example. If I'm eating gulab jamun, I need more insulin. My pancreas will release insulin. But if somebody is taking insulin from outside, that regulation you have to understand. Okay. So for that, we have to monitor. We have to check. If I'm eating gulab jamun, my carbohydrate is more. I need more insulin. If I am fasting today, my carbohydrate is lesser. I need less insulin. So normally what happened in India? Like people say, okay, doctor has written 16 unit. I have to take 16 unit. I am fasting or I'm eating gulab jamun. Doesn't make a difference. So that's incorrect. Okay. To regulate the things, we have to understand what is carbohydrate. We have to work closely and we have to give insulin accordingly. Okay. There are two types of insulin which is used. One is basal insulin and the other is bolus insulin. So basal insulin is the baseline insulin which work 24 hours. We need energy 24 hours to talk, to breathe, to sleep, to my internal organ to function. We need some amount of insulin all the time. So this is called basal insulin. If you have heard the name about Lantus, Tresiba, Toujeo, they all are basal insulin, long-acting insulin. These insulin has got nothing to do with food. Okay. Usually they work for 24 hours. So we try to maintain the cycle of 24 hours. If I'm taking injection 9 p.m., I will try to keep 9 p.m. every day to maintain the cycle of 24 hours. Fine. And this insulin has got no relation with food. Fine. Other one is bolus insulin.
which is short-acting insulin. They work for 4 to 6 hours and then they are over. So what is our digestion time is? For carbohydrate, 4 hours. For proteins, 4 hours. So that's how it basically works for 4 to 6 hours to improve your postprandial blood sugars. Okay. Any question? Acha, okay. Question we are taking in the last. Now, monitoring. Monitoring is that what we need to check, what all required to understand that you have got good HbA1c. That means good sugar control. If we keep good sugar control, we can prevent diabetes complications. So what are the ways to check? At home, we can check with self-monitoring blood glucose or CGM, continuous glucose monitoring system. You must have seen there's a chip available nowadays, we stick on it and then it keeps circulating your sugars 24/7. And third is, through the laboratory, we can do HbA1c, glycosylated hemoglobin. I've just explained about it is a glycation on red blood cells to understand that how much glucose is in our serum so that we can assess that where the diabetes is standing, is it good control, bad control, or pre-diabetes. Correct? So a lot of people have got, understanding that are we using a right kind of glucometer? Is it essential? Is it authentic to use glucometers? So yes, definitely glucometers are more safe and the best way to monitor you closely. If you are on a treatment like low sugar or high sugar, then if you go to the lab, you will get reading by tomorrow or by evening. So what happens if you're having low sugar? You can't treat your low sugar at that time. Correct? So for management of diabetes, glucometers are very, very effective. And to prevent diabetes complication, again, I'm highlighting, it is very important to follow all 4 steps. Your awareness about diabetes management has to be better. And then if you work together on all 4 steps, I'm sure you can do it better. So glucometer, we all know it is used by patient themselves. It is a simple device. Anytime, anywhere you can do, and you need a small drop of blood when you are on a multiple shot, when you are exercising, when you have got the risk of hypoglycemia, when you want to adjust the dosages, glucometer is fabulous equipment to understand. Okay. The different brands available, you can pick up according to how much features do you want. Like, mobile phone, there are so many features. You how simple you want to do, or you want to complicate, you want to see the graphs on your glucometer, or you want your doctor to be informed by a glucometer. So there are different parameters, the different brands available. You can pick up as per your convenience. CGM is quite in nowadays because people don't want to prick. So CGM is continuous glucose monitoring system. There's a small patch. You all must be seeing a lot of advertisements are coming nowadays where we place a patch and it take a video film of your glucose. So it's a live sugar all the time. Rather than seeing one still picture of your sugar, there's a live picture going on 24/7 that can be seen through CGM. If you're not managing diabetes well, definitely the chances of reaching to chronic complication like eyes getting affected, nerves getting affected, kidneys getting affected, heart getting affected is pretty high. I've just mentioned the percentage is pretty high. So we have to increase the awareness how we can manage diabetes better without landing up into these complications. So ideally, we say that once in a 6 month, you should check your cholesterol and kidney profile, manage your weight well, exercise regularly. Your diet should be good in fiber and low in fats. Vitamin D supplementation we all need because Indians are osteopenic mostly, data says, and vitamin D is a good immunity booster also. So avoid smoking and reduce your salt intake. People always think with diabetes, no sugar, but never think about salt. Salt is a bigger culprit than sugars. Take home messages. Diabetes is a lifelong condition and it can affect your life significantly.
Always try to set achievable and realistic goal for your patients. Diabetes has 4 pillars of diabetes management: diet, exercise, medication, and monitoring. And clinical monitoring is best, like, doing your labs in between. Exercise, maintain your blood glucose to the optimal range. Diet itself plays a vital role for diabetes management. So make sure your dietitian is being really upgraded and informed about that how you are, and you all are mostly dietitians. So diabetes educators are like basically trained for OHAs. That's what we are doing, and that's what Archana did with me to learn about OHAs. And to prevent diabetes complication, I think baseline is management of education. So if we are understanding what diabetes, how we can live with it without landing up into complication, I think you have done a great job. Good control of diabetes can prevent or delay diabetes chronic complication. And HbA1c is very, very important, should be checked quarterly, because our red blood cells have got a lifespan of 120 days. So that is why HbA1c has to be checked quarterly. If it is controlled, definitely then we go to 6 month and then we go to annually. But ideally for any diabetic, it should be checked quarterly. I think this is the last slide. Thank you so much for your patient hearing. Thank you so much, Dee. It's a really Thank you. wonderful and just crisp and very well like explained lecture and session. Thank Many you. dietitians are there, like पूछो थोड़े थोड़े से सवाल भाई, तभी पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया। हम तो यह बोलते हैं, अगर सवाल नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब या तो सब कुछ आता है या फिर कुछ समझ में नहीं आया। ज्यादा समझ आ गया नहीं। या कुछ भी हेलो समझ मैम। नहीं आया। हाय हाय हाय। हाय मैम, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे जी। कि कई बार हमारे कुछ केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें कि हमारी रैंडम शुगर ठीक रहती है, पोस्ट पेरिडियन आफ्टर 2 आवर शुगर ठीक रहती है, इवन आप अगर डाइट पे भी हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, और उनका क्या है कि अभी जो फास्टिंग जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और इंटरमीडिएट मतलब जो फास्ट गैप होता है आफ्टर द बेड टाइम का और अर्ली मॉर्निंग का गैप भी 12 to 15 आवर्स कवर कर रहे हैं, तो हमारी फास्टिंग इतना ज्यादा रैपिडली कैसे बढ़ रहा है? मतलब क्या रीजन हो सकता है? बेटा, इसी को ही प्री डायबिटीज कंडीशन बोलते हैं, है ना, कि जिसमें हम्म। हमारा रैपिडली फास्टिंग बढ़ता जा रहा है। और उस पे करना क्या है, लाइफस्टाइल पे ही काम करना है। अगर आपका वेट ज्यादा है, वेट कम करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, जिससे कि आप उस कंडीशन से बाहर निकल आए। वो आपको अलार्म दिया जा रहा है कि आप जा रहे हैं टुवर्ड्स डायबिटीज। ओके। ठीक है। हाँ। आ, ठीक है मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे ना बहुत सारे आजकल मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे कंटेंट आते हैं हमारे ये चीज कि हमें अपनी शुगर को ठीक करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत लंबे टाइम के लिए करनी चाहिए, 17-18 आवर्स का भी अभी जो नया अपडेशन आया है काफी जगह, जैसे हम इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल करते हैं तो वहां भी दिखता है हमें। तो क्या वो ठीक होता है कि हमारी इतनी लंबी फास्टिंग करने से क्या हमारे शुगर लेवल्स ठीक हो पाते हैं या रिवर्स होते हैं? मतलब क्या कहेंगे आप एक बार? देखो, जब बॉडी स्टार्वेशन में जाती है तो हमारे जो स्टोर्स हैं वो बर्न आउट होना शुरू होते हैं। लेकिन अगर कोई डायबिटिक है और सल्फोनाइल या इंसुलिन जैसी दवा पे है, तो हम 18 आवर फास्टिंग नहीं बोलते हैं। आइडियली हम सबको 12 आवर्स फास्टिंग तो करना ही चाहिए। 12 to 14 इज मोस्ट सेफ विंडो। और उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत लेट आफ्टरनून में शुरू करते हैं कि मैं 12 बजे पहला मील ले रहा हूँ, टाइप्स। वो गलत है। मॉर्निंग में हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत एक्टिव होता है, और इवनिंग में स्लगिश होता है। तो जब हम एक्टिव फेज में हैं तो हम स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम स्लगिश में हैं तब हम खा रहे हैं, एक्टिवेट कर। तो हम उसको करेक्ट। सो आइडियली स्टार्ट अर्ली योर मील एंड फिनिश ऑफ अर्ली। कोशिश करिए कि अपने डिनर और अपने बेड टाइम में कम से कम 3 से 4 घंटे का फर्क रखोगे, तो यू विल फाइंड कि ऑटोमेटिकली योर बॉडी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट इम्प्रूविंग। But you eat and sleep and you starve in the morning for so many hours, so that's not a good idea.
वन मोर थिंग मैम, जी। कि जैसे कि हमारा, अगर हम बात करें कि ओवरवेट भी है बहुत ज्यादा और बहुत सारी क्रोनिक कंडीशंस भी हैं, सारी चीजें ऐसे में वेट भी मैनेजमेंट हो, तो अगर हम कोई इंसान अगर इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन पे है, तो ऐसे में डाइट, अभी आपने बोला ना जैसे इंसुलिन डाइट से कोई ऐसे इफेक्टिव नहीं होता है, तो क्या हमारे कोई डाइटरी पैटर्न में चेंजेस आएंगे? अगर किसी का इंसुलिन के यूनिट्स पे है तो वो किस तरह के चेंजेस होंगे मैम? बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि जब हमारी बॉडी अपना इंसुलिन खुद बनाती है, तो वो एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली करते रहती है। भाई मैंने गुलाब जामुन खाया, ज्यादा इंसुलिन आ गया। मैंने फास्ट रखा, कम इंसुलिन। तो वो रेगुलेशन ऑटोमेटिकली होगी ना, गॉड बिल्ड है ना। लेकिन जब हम ऊपर से इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो गॉड बिल्ड नहीं है। तो वो हमें क्लोजली अंडरस्टैंड करना है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है। जो हम खाना अ, मतलब इंसुलिन को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कोई आप सब डाइटेशियन हो, जानते हो कि दाल में भी इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जितना कि रोटी में होता है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट। रोटी में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कटोरी दाल में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि आपने जब दाल और रोटी हाँ। खाई, तो आपकी बॉडी में 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जा रहा है उस मील के तरफ से। लेकिन जब आपने सब्जी और रोटी खाई, तो सब्जी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किसी में भी नहीं है। ठीक है। अगर आप आलू की सब्जी खाओ, तब भी शायद 15 ग्राम नहीं होता, 10 या 8 ग्राम होता है। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने तोरी की सब्जी और रोटी खा रही हूँ, और मैं 16 यूनिट इंसुलिन लगा रही हूँ, और मैं दाल और रोटी खा रही हूँ, तब भी मैं 16 यूनिट इंसुलिन लगा रही हूँ, तो क्या मेरी शुगर ठीक रहेगी? नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुझे 30 ग्राम प्रोटीन आ रहा था, उसके लिए मैंने 16 यूनिट लगाया। हो सकता है मेरी बॉडी 16 यूनिट न्यूट्रलाइज करती है 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, रैंडम फिगर बोल रही हूँ। ठीक है। तो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट करती है। अब मैंने दाल और रोटी खाई और 16 यूनिट लगाया, क्योंकि डॉक्टर ने 16 यूनिट लिखा हुआ है। तो जब मैंने वापस शुगर चेक करी, तो मुझे शुगर 250 दिख रही है। मैंने तो 16 ही लगाया है। ठीक है ना। तो उसने 20 को न्यूट्रलाइज किया, 10 को छोड़ दिया, तो शुगर बढ़ी हुई रहेगी। आज मैंने तोरी की सब्जी और रोटी खाई है। तोरी में तो उतना कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, यानी कि 15-16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गया। 16 ग्राम के लिए मैंने 16 यूनिट इंसुलिन लगाया, जो कि 20 कार्बोहाइड्रेट के लिए चाहिए था। तभी क्या होगा, 4 यूनिट इंसुलिन एक्स्ट्रा गया है, वो लो शुगर कर देगा। इसीलिए इंसुलिन के साथ में काफी बार पेशेंट वेट गेन भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको लो शुगर होती है, तो वो जबरदस्ती 3 रोटी खाने लग जाते हैं। 2 रोटी खाने से तो लो शुगर हो जाती है, 3 रोटी खाते हैं या 2 रोटी खा मतलब बढ़ा देते हैं रोटी, तो वेट गेन हो जाता है। तो ये यहाँ मिसमैनेजमेंट हो जाता है। वेट बढ़ेगा तो आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, इन सब के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि ओबेसिटी आ रही है। तो दैट इज वाई इंसुलिन के साथ में हमें मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती ओके मैम। और मैम लास्ट वन क्वेश्चन मेरा, कि जो हमारा मतलब बेस्ट टाइम, जैसे कहते हैं कि कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए भी कि हमारे को मेडिसिन कब लेना चाहिए, मतलब बिफोर द मील्स, आफ्टर द मील्स, या 24 आवर्स, उसमें थोड़ा सा वो रहता है कंफ्यूजन कि हाँ कौन सा टाइम ऐसा रहता है जो हमारी शुगर भी ठीक रहे, हमारे मेडिसिन की टाइमिंग भी एक ही टाइम पे रहे। है। वेरी गुड क्वेश्चन गीतांजलि। मैंने ओएचएस बहुत कट शॉर्ट में पढ़ाए हैं, है ना, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाए हैं। बट मेटफॉर्मिन, DPP-4 और SGLT2, इन 3 दवाओं से लो शुगर नहीं होती। आप इनको खाने से पहले ले रहे हैं, खाने के बाद ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन सल्फोनाइल ग्रुप बहुत जरूरी है, खाने से 15-20 मिनट पहले लेना। क्योंकि मैंने बताया उसका क्या काम है, हमारे पैनक्रियास को स्क्वीज करके इंसुलिन को रिलीज करना। मतलब हम एक इंसुलिन को प्रेशर से रिलीज कर रहे हैं। तो अगर आप खाने के बाद खाएंगे, आपका खाना ग्लूकोज बन के ब्लड में जा चुका है, उसके बाद आपका इंसुलिन जा रहा है, तो मिसमैच होगा, है ना। इसीलिए सल्फोनाइल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं 15 से 20 मिनट पहले खाना चाहिए। एक कार्बोस, जो मैं AGI एक ग्रुप था, जिसमें आपने सुना होगा ग्लूकोबे, एक कार्बोस, इस तरीके के नाम की दवाइयां होती हैं। तो इनका काम है ग्लूकोज की स्पीड को स्लो करना।
तो इन दवाओं को हम लोग बोलते हैं खाने के बीच में खाना चाहिए, यानी कि आप एक बाइट खाना खाइए, फिर एक कार्बोस खाइए, फिर बाकी खाना खाइए। ठीक है। इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, जो ये क्वेश्चन पूछा है नीनू मोहन ने, ओनली इंसुलिन नीनू, नो मेडिकेशन, नो टैबलेट। ठीक है। मेटफॉर्मिन काफी डॉक्टर यूज करते हैं, बट वो भी कॉन्फ्लिक्ट में चलता है, तो बहुत सेंसिटिव डॉक्टर मेटफॉर्मिन यूज कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस तक नहीं पहुंचता। जो टैबलेट्स हैं, हर हर टैबलेट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो इट मे बेनिफिट यू एंड फीटस इज वेरी सेंसिटिव, so it may harm to fetus। इसीलिए प्रेगनेंसी में इंसुलिन, ओनली इंसुलिन नीनू। थैंक यू, लवली क्वेश्चन नीनू। गुड इवनिंग मैम। गीतांजलि। मैम एक चीज पूछनी थी कि जैसे ग्लाइकोमेट मेडिसिन आती है, वो भी क्या सल्फनाइन ग्रुप से रिलेटेड होता है या फिर वो नहीं तो बेटा, बायगुनाइड है वो, जो मैंने अभी ड्रग की लिस्ट दिखाई थी ना, बायगुनाइड है हम्म, फर्स्ट नंबर पे। बायगुनाइड मेटफॉर्मिन है, जो कि साइड इफेक्ट उसका ये है कि उसमें लो शुगर के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। पीसीओज में भी बहुत कॉमन हम लोग यूज करते हैं ग्लाइकोमेट। तो अगर उसे लो शुगर हो जाएगी तो हम उसको कैसे खिलाएंगे? पीसीओ वाले को तो डायबिटीज नहीं है ना। उसका काम है हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना, हमारे मेटाबॉलिज्म को रिवाइव करना, मेटफॉर्मिन का। ठीक है। तो मेटफॉर्मिन बायगोनाइड है, अलग ग्रुप है। वेट लॉस एंड डायबिटीज, लिटिल एक्सप्लेन, श्योर अर्चना। सो वेट लॉस डायबिटीज के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बताया भाई डायबिटिक्स को एवरी 5th पर्सन इज सफरिंग विद हार्ट डिजीज, एवरी 10th पर्सन इज सफरिंग विद किडनी डिजीज, है ना। तो वेट मैनेजमेंट और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फैट परसेंटेज कम करना बेहद जरूरी है। हमारी बॉडी में दो तरीके का फैट होता है, एक होता है विसरल फैट, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर फैट की लेयर होती है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी स्किन के अंडर होता है। ठीक है। तो विसरल फैट जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। आपने देखा होगा ओबिसिटी के साथ में लोगों के नेक में ऐसे निशान होते हैं, एकैंथोनेक्रोसिस जिसे बोलते हैं, अंडर आर्म में निशान होते हैं, है ना, थाइज में निशान होते हैं, रेड मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क जैसे होते हैं। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। जब हम वेट लॉस कराते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोग पार्लर जाते हैं, मेरी गर्दन में से काला काला हो गया, इसको क्लीन करना है, बट वेरी गुड। एक्चुअली पार्लर से नहीं होता, वो आपके लाइफस्टाइल से है। जब आप वेट लूज अपने आप करेंगे, ठीक एक्सरसाइज करेंगे, वो अपने आप डिसअपियर हो जाता कर कर है ना, हाँ अनफॉर्चुनेटली। हाँ, फिर भी मैं देखती हूँ स्किन वाले कुछ कुछ दवाइयां दे देते हैं, जी। ये लगा लो वो लगा लो, विच इज रॉन्ग। यस। जी अर्चना, यू वर सेइंग एक समथिंग। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन और था दीदी, जैसे कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि शुगर हुई है ना। सडनली हमें इमरजेंसी में हमारा पेशेंट आया अबव 500 शुगर लेवल लेकर के, एंड वो आया भी क्यों उसे भी नहीं पता था, क्यों? क्योंकि उसका वेट सडनली बहुत लॉस हो रहा है। आई वाज टॉकिंग अबाउट हम्म। दैट। तो वो चीजें क्या, बिकॉज ऑफ शुगर लेवल व्हाई वेट लॉस इज सो मच? या दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अर्चना। क्या होता है, हमने अभी क्या बताया था शुरू में, कि हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनता है। यस। ग्लूकोज बन के इंसुलिन की मदद से वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब सडनली मेरी बॉडी में या तो इंसुलिन बनना बंद हो गया, मेटाबॉलिक कंडीशन होती है वो, ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसको टाइप 1 डायबिटीज भी बोलते हैं। और कई बारी हमारा फूड हैबिट, क्योंकि कमजोरी लग रही है, हम खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फैट की लेयर है, और हम खाई जा रहे हैं, तो वो खाना जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रहा है वो बॉडी यूज ही नहीं कर रही, तो वो यस। ब्लड में ही रुक जा रहा है ग्लूकोज। और दैट इज वाई शुगर 500 600 हो गई। जो एडल्ट होते हैं उसमें हम लोग हाइपोऑस्मोलैरिटिक कंडीशन देखते हैं, यानी कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, पेशेंट का क्या कहते हैं, वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहे हैं। वो टाइप 1 में जब कीटोन्स आने लगते हैं तब वो कंडीशन आती है। नहीं, क्योंकि टाइप 2 में ये बहुत बार बहुत सारी डाइटिशियंस हाँ, का ये सवाल आता है, क्योंकि पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, कहता है मैं तो बहुत करेक्ट अच्छे से खाना खा रहा हूँ, मेरा वेट करेक्ट क्यों कम हो रहा है। इसलिए मैंने करेक्ट एक्चुअली करेक्ट। डाइटिशियंस के बिहाफ पे ये क्वेश्चन उठाया, क्योंकि बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन ऑफ है। द टाइम हम सुनते हैं कि भाई मैं तो अच्छा हाँ खाता हूँ,
मेरा वेट मैडम हाँ क्यों कम हो रहा है, तो उन्हें हम एक्सप्लेन हाँ, कितना भी कर लें बट दे कांट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसका रीजन यही होता है कि बॉडी में जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा। वो खाना नहीं, तो सफिशिएंट खा रहे हैं, लेकिन बॉडी उसको यूज ही नहीं कर रही, यूज तभी नहीं कर रही 500 है। शुगर हो गई। और हमें एनर्जी तो चाहिए। तो हमारा वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो अंदर डिपॉजिट है वो वो एनर्जी यूटिलाइज हो रहा देने है। का काम कर रहा है। यस यस। तो उस करके वेट लॉस हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो हमारे कम अक्रॉस विद द पेशेंट, कि एसएमबीजी आपने बीच में थोड़ा शेयर किया था, तो बहुत इफेक्टिव है कि आपको बार बार प्रिक नहीं करना है, बट कुछ पेशेंट्स के साथ में ऐसा हुआ कि उनकी शुगर लेवल कम नहीं हुई, मतलब पराठा भी खा रहे हैं वो आलू का पराठा, तो इट्स वेरी लाइक हम लोगों के संग कंट्राडिक्शन हो जाता है कि देखिए मेरा तो, मैंने तो ये लगा रखी है मशीन, मेरा तो शुगर लेवल हाई जाता ही नहीं है, मैं चाहे पराठा हम्म खा लूं चाहे मैं आपकी सब्जी रोटी खा लूं, तो आप लोग का कोई काम नहीं है, आप लोग देखो मेरा ये परफेक्ट चल रहा है। और ये कुछ डॉक्टर्स के साथ हुआ है एक्चुअली। पेशेंट को तो एक अच्छा। बार आप एक्सप्लेन कर भी सकते हो, बट जी कुछ डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई मैं तो जी आलू का पराठा ही खाऊंगा, क्या करोगे बताओ। जी जी जी। एज अ डाइटिशियन आलू का व्हाट पराठा वी शुड देखो, सजेस्ट। हाँ, एक्चुअली तो यहाँ पे आता है कि हमारा डाइजेशन का रोल, करेक्ट। हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्पीड क्या है और हमारा फैट का डाइजेशन स्पीड क्या है। वेरी ट्रू। बिकॉज ऑफ द फैट डाइजेशन इज डिलेड, इसीलिए पीक नहीं बना है, हम्म। लेकिन बाद में कॉन्सेंट्रेट करेगा आफ्टर 6 to 8 hours, यस। है ना? तो उस टाइम में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। दैट्स वन थिंग। और एनी फूड इज नॉट पॉइजन, एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग इन सो। बहुत अच्छी बात है आलू का पराठा। हमारी कैलोरीज कितनी हो रही है, एंड ऑफ द डे हमें कैलोरीज को भी मॉनिटर करना है। न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे मैंने प्लेट दिखा रही थी कि सबको ये बोलो कि भाई ये प्लेट पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है, कि आधा हिस्सा आपकी प्लेट जो है वो फाइबर होना चाहिए, सलाद और सब्जियां होनी चाहिए, 1/4 प्रोटीन होना जरूरी है। हम लोग लैक करते हैं प्रोटीन्स। चाहे हम्म। वेजिटेरियन है तो दही की कटोरी है, 50 ग्राम पनीर है, या अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो 1 गिलास दूध है ना? और 1/4 कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, नहीं। चाहे होल व्हीट हो, चाहे मिलेट्स हो, चाहे किनुआ हो, मतलब देर डिफरेंट, आजकल तो बहुत सारे सोलर फूड्स आ गए हैं। हम्म। तो वो सब कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आप डेली बेसिस पे रेगुलेट कर सको आपकी डाइट। वेरी नाइस। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। हाय Ma'am. तन्वी। Yes, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, I just wanted to know that हम अगर मतलब a person is facing like diabetes है उनको और उनको weight loss भी करना है, तो हम उनके लिए क्या डिनर ऑप्शंस रख सकते हैं ताकि उनकी जो फास्टिंग है वो ठीक आए। बिकॉज कितनी बार क्या होता है कि वेट लॉस कराने के चक्कर में मतलब मैंने ये चीज फील करी है कि क्लाइंट्स का ऐसा होता है कि जो हमारी पोस्ट जो हमारी शुगर आती है रैंडम वो हमारी ज्यादा आ जाती है। तो बस यही पूछना था कि डिनर में हम क्या ऑप्शंस दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को ताकि उनकी फास्टिंग ठीक आए। सबसे इम्पोर्टेंट तन्वी, जो मैंने प्लेट पैटर्न बताया वो फॉलो करो और देखो कैसे आती है फास्टिंग। ओके आप मैम। क्या देते हो आप क्या देते हो डिनर के ऑप्शन? सपोज जो भी आप केस का आपको रिमाइंड आ रहा है, हाँ जस्ट जी टेल मी व्हाट डिनर ऑप्शन डिड यू गिव। मैम, लाइक अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो जैसे सूप सैलेड्स प्लस एक टोस्ट दे दिया ताकि हम्म, फाइबर भी रहे एंड ज्यादा कार्ब्स भी नहीं देने हैं। और अगर दाल दे, परफेक्ट। हाँ जी, दाल सैलेड और टोस्ट दे दिया या मिल्क एंड मिल्क पॉरेजेस दे दिए या 2 कटोरीज ऑफ दाल दे दी विद 1 रोटी और हाफ रोटी विद फुल प्लेट ऑफ सैलेड अभी ताकि। हमने डिस्कस किया था ना, भी दाल में रोटी के बराबर कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने 2 कटोरी दाल दे दी तो आपने 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो दे ही दिया, यस 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 मैम है वही। ना? हाँ। तो यहाँ पे हमें ये करना है, जैसे आपने बोला पॉरेज का एग्जाम्पल बोला, पॉरेज बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। उसमें आप सीड्स डलवा दो या फ्रेश फ्रूट कटवा दो। ओके। दूध आ गया प्रोटीन के लिए, ओट्स या जो भी आप यूज कर रहे हो दलिया, वो आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए, और आपने फ्रूट साथ में दे दिया तो आ गया आपका फाइबर के लिए। ठीक है? तो वही 1 कटोरी जो हमने दूध और दलिया लेना था उसमें हमने आधी कटोरी फाइबर डाल दिया, हाँ जी। तो उसका पोर्शन भी कम हो गया और सेटाइटी भी आ गई। ठीक है? हाँ। अगर पेशेंट सल्फोनाइल ड्रग पे नहीं है या इंसुलिन ड्रग पे नहीं है, तो आप मिनिमम कार्बोहाइड्रेट आपके डिनर में कर सकते हो। मतलब इवन जैसे आपने बोला सूप और हमने टोस्ट दे दिया, है हाँ ना? जी। तो सूप और टोस्ट, अब आप प्लेट को इमेजिन करो क्या क्या मिसिंग है। हाँ जी मैम, इसमें फाइबर मिसिंग है, वेरी प्रोटीन गुड, है। वेरी गुड। तो हाँ जी। क्यों ना हम पनीर सैंडविच दे दें और सूप दे दें। राइट। या मैम करेक्ट।
टमाटो हम्म सूप, हम उसमें पनीर, रॉ पनीर क्यूब्स दे सकते हैं। बहुत बढ़िया है। टमाटो सूप में पनीर क्यूब्स दे दो, और साथ में एक टोस्ट दे दो और सैलेड दे दो। हाँ जी मैम। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, कि हाँ जिस तन्वी। ये रहता है कि ब्राउन राइस आर मोर प्रेफरेबल, एंड जो मिलेट रेसिपीज होती हैं, मिलेट्स, हम्म हम्म डायबिटिक पेशेंट्स, ताकि उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल हो, तो मैम ये हम्म मतलब इट्स इफेक्टिव लाइक। I was doing one consultation today and I was drawing this picture. Is it visible? यस मैम। ओके। इसमें मैंने यही दिखाया है, उनका पेशेंट का कहना था कि मैं खुद राइस का बिजनेस करता हूँ ओके। और ब्राउन राइस मुझे पसंद नहीं है, हाँ और जी मैं मैम। बासमती राइस खाता हूँ, हाँ जी, हाँ उससे जी। मेरी शुगर नहीं बढ़ती है। हाँ ठीक जी। है। तो कोई भी फूड होता है बेटा, जैसे वो प्रोसेस होता जाएगा वो क्विक शुगर में कन्वर्ट होता है। ओके ठीक मैम। है। ब्राउन राइस जो है उसका आउटर कवरिंग है, हाँ जी। तो मिनिमम प्रोसेस हुआ। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आता है बासमती। बासमती में हमने दाना इंटैक्ट रख रहे हैं तो हम बहुत केयरफुली आउटर हस्क रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद आता है नॉर्मल राइस। नॉर्मल राइस में हमने पूरा वाइट, मतलब वाइट राइस, पूरा ब्रांड हटा दिया, हाँ जी। दाना ब्रेक भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो जितना वो ब्रेक होगा उतना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाता है। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बोला, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। हाँ जी। यू हैव टू लिव विद इट। तो आपका डाइट का पैटर्न हमें ऐसा देना चाहिए जो लाइफ टाइम कोई फॉलो कर सके। भाई किसी के खाने घर में राइस ही ईटर है, कितने दिन ब्राउन राइस खा लोगे यार, आप ही कितने दिन ब्राउन राइस खाओगे तनवी, राइट मैम। है ना। रेगुलर तो यू वांट टू हैव व्हाइट राइस। तो हम्म अभी क्या करें, व्हाइट राइस में क्या प्रॉब्लम है अपने को। मैम, जैसे कहते हैं ना, हाई इन कार्ब्स है, रिच इन स्टार्च। करेक्ट। तो ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होता है, हाई कार्ब नहीं है, कार्ब सेम ही है। ब्राउन राइस, बासमती राइस, व्हाइट राइस, पारबॉइल्ड राइस में थोड़ा सा कम हो जाता है, बट B12 पूरा खत्म हो जाता है। तो कोई भी राइस है, ठीक है, या साबुत दाल, स्प्लिट दाल, और धुली दाल, हाँ जी। होती है ना, छिलके वाली दाल, साबुत दाल होती है, छिलके वाली दाल होती है, पीली दाल होती है। तो साबुत दाल पूरा इंटैक्ट है, आउटर कवर सब कुछ है, उसका न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है। हम्म स्प्लिट दाल, आप देखोगे कैलोरी वाइज जो अपनी ब्लू बुक होती थी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली, हम्म कैलोरीज तो नहीं चेंज होती ना, नहीं मैम। खाली ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज होता है, क्योंकि वो प्रोसेस होता जा रहा है। ओके। तो हमें क्या करना है डायबिटीज में, जो भी वो खाना खाएं वो स्लो शुगर में फॉर्म होना है। अगर आप व्हाइट राइस खा रहे हो तो हाँ जी। आप पेशेंट को एडवाइस करो, ईट अ फुल प्लेट ऑफ सैलेड बिफोर। ओके। भाई खाना खाने से पहले आपने एक प्लेट सैलेड खा लिया, जी। तो आप ऑटोमेटिकली आपका राइस का इंटेक कम हो जाएगा, पहली चीज। हम्म आपको ये बोलना नहीं पड़ा आप आधी कटोरी चावल खाओगे, ये नहीं हम्म बोलना पड़ा। साइकोलॉजिकली विल बी एबल टू फॉलो। सेकेंडली हमें उसको बेनिफिट ये बताना है कि जो आपने राइस की प्लेट, सॉरी सैलेड की प्लेट पहले खाई है, तो उसने एक नेट क्रिएट कर दिया, ओके। यानी कि आपने रिफाइंड फूड भी खाया, तो हम्म इट विल नॉट रन इनटू ब्लड विद द हाई पेस, ओके। है ना। जो भी खाना हाई पेस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अगर बॉडी उसको यूज नहीं कर रही है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। यस मैम। ठीक है। तो हमें वो स्लो डाउन करना है उस प्रोसेस को, और जब हम उस प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे ऑटोमेटिकली ओबेसिटी साथ में रिड्यूस होती जाती ओके मैम। एंड मैम, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स का स्पेशली हमें कितनी कितनी देर में कहना चाहिए, लाइक कई कहते हैं, एक्चुअली आई डिड वर्क इन हॉस्पिटल ऑल्सो, तो वहां पे बोलते थे कि आपको हर एक घंटे में डायबिटिक पेशेंट को कुछ ना कुछ देना है। एंड है। हर एक घंटा तो इज टू अर्ली। हाँ जी। एंड मैम, फिर कोई डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप 1 आवर तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 आवर्स में आप कर सकते हो, ताकि हाँ, उनकी। 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स मिनिमम चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही 2 आवर्स है ना, उससे पहले आप देखे क्या करोगे। हाँ जी, नहीं तो ब्लड शुगर। लिक्विड डाइट में हम फिर भी आवरली दे सकते हैं, लिक्विड डाइट अगर है तो, बट नॉर्मल डाइट में 2 आवर्स इज टू अर्ली। हाँ जी मैम, बेशक उसमें कोई वो या तो फ्रूट हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, या फुल करेक्ट वगैरह भी हो सकती है। करेक्ट 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 तन्वी। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। दैट्स ऑल। अर्चना। थिंक हाँ क्वेश्चंस। मैम, मेरे को एक चीज हाँ और पूछनी थी। हाँ, पूछो हाँ गीतांजलि। मैं हाँ मेन चीज
एक चीज है कि मैं मतलब ये ना मेरे जिससे आया कि मैं सडनली जैसे कि मिलेट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है मिलेट का, कि मिलेट बहुत ज्यादा, मिलेट इतना हेल्दी है, सब कुछ है, पर इसमें भी वेरिएशंस आ गए हैं जस्ट फॉर अवर टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ। तो जस्ट आई ट्राई कि मिलेट की कुकीज आती है, चोकोज आते हैं, तो मैंने भी जैसे खुद भी ट्राई किया है, तो ठीक है, पर हम डायबिटिक नहीं है तो हम क्या, पर हम किसी भी चीज में जैसे मिलेट कुकीज है या मिलेट को कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, उसको क्या हम डायबिटीज पेशेंट को समाओ कभी ब्रेकफास्ट में प्रेफर दे सकते हैं कभी कभी, या कुछ ये आपने ऐसा? बहुत अच्छी चीज ऐड कर ली ब्रेकफास्ट में, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट देना है मेन मील में। ठीक है, हमें कार्बोहाइड्रेट काउंट करना है कि कितना कार्बोहाइड्रेट है और उसको मेन मील में देना है। मतलब आप सोचो कि भाई आप शाम को चाय पी रहे हो, चलो 2 मिनट बिस्किट खा लो या कुकीज खा लो, तो वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हो गया। हमने क्या हम्म। बोला कि हमें स्नैक्स के लिए प्रोटीन या फाइबर ही यूज करना है। ठीक है, बट मेन मील में 1/4 कार्बोहाइड्रेट देना जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ट्रू। ओके मैम। और मैम जैसे कि चलो। एक चीज और, जैसे हमारे जब हम प्लान बनाते हैं, प्लान्स में हम ये सोचते हैं कि शाम के समय हमारे डायबिटिक पेशेंट की क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करें, सब चीज एक हेल्दी स्नैक्स रखते हैं। और अगर हम हेल्दी स्नैक्स में लाइक बेसन का यूज कर रहे हैं या फिर मिलेट का, और वो फ्राइड ना होके सिर्फ बेक्ड हो, ओनली बेक्ड, रोस्टेड तो हो या बेक्ड हो। हम जा सकते हैं उन ऑप्शंस, रोस्टेड या बेक्ड हो, तो उन ऑप्शंस के साथ भी हम शाम में मठरी, चाहे मठरी बेक्ड करा हमने सब, तो इन सारी चीजों को भी अगर हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स, क्योंकि मैम मैं अभी यहाँ गोवा में रहती हूँ, तो बहुत अच्छा, सारे लोग यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं कि उनको मतलब लगता है कि हाँ बहुत इवनिंग में हमारा तो मंचिंग टाइम होता है बहुत पीक पे सब कुछ, तो ऐसे चीजों के लिए मेरे को क्लेरिफाई करना था एक बार। कोशिश करो कि प्रोटीन्स दो। ठीक है, बेसन, चने, स्प्राउट्स, लेंटल, कॉर्न सैलेड, ऐसी चीजें दे सकते हो अगर उनको ज्यादा भूख लगती है। मिलेट्स भी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लेकिन रोस्टेड मिलेट्स जो होते हैं तो वो हल्के होते हैं। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स चाय के साथ तो यही चलेंगे, बाकी फ्रेश फ्रूट स्नैकिंग कराओ, 2 से 3 फ्रेश फ्रूट खाने के लिए बोलो। राइट। फ्रेश फ्रूट्स के बारे में भी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लाइक आफ्टर 6 o'clock या इवनिंग आवर्स में कैन बी टेक, यस, बट दैट्स अ अलोंग विद वेरी द गुड मील, क्वेश्चन। अलोंग विद द मील कई नहीं, बार क्या है अलोंग ना, विद द मील नहीं, वो लोग क्या एज ए कर रहे एज हैं ए कि वो डिनर एज अ भी कर रहे स्नैक। हैं और फिर कहते हैं हमें 2 घंटे बाद भूख लगी, तब फिर वो खा रहे हैं रात को 10 बजे। तो अगर 2 घंटे बाद खा रहे हैं तो अलोंग नहीं हुआ, राइट। पर ले सकते हैं। दिन और रात में कोई ज्यादा फर्क पड़ता हम्म नहीं है। हम्म आइडियली लेना चाहिए। हम्म। आज ही मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी, तो उनको आदत है बेड टाइम पे वो फ्रूट अमरूद खाने या की। संतरा खाते हैं हाँ हाँ आजकल के सीजन में। हाँ। और ही इज 68 और समथिंग एज। और जब उन्होंने शुरू किया था मेरे साथ में, तब उनका HbA1c 9 था, और अब हम्म उनका HbA1c 5.7 है। हम्म और उनके बेटे खुद डॉक्टर हैं जो उन्हें देख रहे थे, बट हम्म अब मैं देख रही हूँ। उनकी दवाइयाँ भी मैं एडजस्ट करती हूँ, एंड ही हम्म। फील वेरी हैप्पी। और हम लोग एक फैट बॉडी एनालाइजिंग मशीन होती है ना, जिसमें राइट। विसरल फैट और वो सब हाँ हाँ हाँ। कैलकुलेट करते हैं। यस यस तो मैम। 65 67 में उनका मसल मास इतना बढ़िया हो गया। करेक्ट करेक्ट। हाँ, यू फील बिकॉज वेरी हैप्पी टाइमली टू। थोड़ा थोड़ा सा चीजें ले रहे हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल करते हुए ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल। एक एज के बाद एक्चुअली वही होता है कि पोर्शन साइज कम हो जाता है, और जी बार बार थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, बट बार बार भी नहीं खाते, तो फिर वही जी वाली बात एक आती है कि भाई शाम को फल नहीं खाने हैं हमको, शाम को हमें ये नहीं खाना है, ये सारे उनके कॉन्ट्राडिक्शंस अपने चलते हैं कि इस टाइम ये नहीं खाना चाहिए, उस टाइम वो नहीं खाना चाहिए, तो वो हम नहीं, कर हमें सकते हैं। मतलब हम फोर्स नहीं कर सकते अर्चना, या क्योंकि हमें बट दे उनके। कैन, हम हाँ, ऑप्शन दे दे सकते हैं कैन। कि आप खा सकते करेक्ट हो, करेक्ट इससे कुछ करेक्ट नुकसान नहीं होने वाला, करेक्ट है करेक्ट ना, अगर करेक्ट आपकी करेक्ट बॉडी को आइडियल। सूट करता है एक्चुअली। बेसिकली व्हाट वी से फॉर द डायबिटीज मैनेजमेंट और एनी डिसीज मैनेजमेंट एज अ डाइटिशियन, कि आपकी बॉडी को सूट क्या कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली दैट्स वाई एग्जैक्टली। पर्सनलाइज डाइट प्लान हम बनाते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल सबका बिल्कुल। सिर्फ एक सिंपल डाइट प्लान बना के हम सबको फॉलो करवा देते, तो किसी को करेक्ट, कोई चीज सूट कर रही है, किसी को कोई चीज सूट कर रही है। और जैसे एग्री। आपने बताया अभी कि राइस ईटर्स को राइस वी कांट स्टॉप, अब जो एक्चुअली लोग रोटी सब्जी ही खाने वाले हैं, दाल रोटी ही खाने वाले हैं, हम उनसे अगर आज की डेट में मिलेट कहें
जो हाँ, खासकर पुराने लोग हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट कि दे भाई विल हमने तो नॉट नहीं खाया, एक्सेप्ट। कि हम क्यों ये नई वही चीज तो खाएं। मैंने बोला ना कि 4 दिन खा भी लेंगे तो 5वें दिन फिर वापस उस एक्चुअली पे आ जाते हैं। यस तो यस इसीलिए जो उनका लाइफस्टाइल है उसको ही रेक्टिफाई करो। कोई यस चावल खाने वाला है, चावल ही खाने दो। उनको बोलो पहले आपने 1 प्लेट सैलेड ऐड करना है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली पोर्शन भी कंट्रोल हो जाएगा, शुगर भी बेटर हो जाएगी और वेट लॉस भी। राइट। एंड फूड के साथ में अलोंग विद द फूड हमें नहीं खाना है food, मील के यस साथ में फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ना, देयर शुड बी अ गैप। या फ्रूट को एज ए मिड स्नैक रखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। मैम एक बार में हम जैसे मिड स्नैक कर लेते हैं फ्रूट्स का, तो कितना पोर्शन रख सकते हैं हम फ्रूट्स का? 2 to 3 एक्सचेंजेस अलाउड होता है बेटा। ओके। जैसे जो अपनी गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर की, हम्म। आरडीए की, उसको फॉलो करो। आइडियली 2 to 3 फ्रूट्स इज अलाउड, 250 to 300 ग्राम्स। राइट। है ना? और वो एक एंड वन गो में तो नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका। सो अराउंड 150 और 100 ग्राम, दैट 150 अगेन डिपेंड अपॉन द शुगर लेवल, करेक्ट, कि अगर आपका करेक्ट, शुगर लेवल हाई चल रहा है तो फिर कुछ टाइम के लिए स्टॉप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट, बिल्कुल ये नहीं है कि 250-300 भी शुगर लेवल चल रहा है लेकिन फिर भी भाई फ्रूट खाना ही खाना है, वो हमें थोड़ा करेक्ट। सोचना रहेगा एंड उसके शुगर अकॉर्डिंग। लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम फ्रूट्स के साथ नट्स रिकमेंड करते हैं, कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये एक सीजीएम से मैंने किसी का नोटिस करा था। और इवन हम्म। एक टाइप 1 बच्चे की मदर ने मुझे ये आइडिया दिया था। हम्म एंड आई रियली लाइक्ड इट, कि आप उसमें सीड्स डाल दीजिए या नट्स दे दीजिए, हाँ, तो वो सीड्स एंड स्पाइक नहीं नट्स, करता। तो वो स्पाइक नहीं करेगा। आई राइट। एग्री विद यू। एंड मैम ये भी एक बड़ा मिथ आता है सबका कि हम कंबाइन नहीं करने चाहिए, हमें मिक्स फ्रूट चाट नहीं खानी चाहिए, मतलब वो बेकार है, मतलब आई डिसएग्री ऑन दैट। हाँ, वही मैं ऐसा कोई कंफर्म डाटा करना भी नहीं चाहती है जो ये बोले कि भाई एक ही फ्रूट खाना चाहिए। कई बार मैं देखती हूँ डाइटिशियन लिख देती है आधा एप्पल खाइए, यू हूँ। नो, या आधा बनाना खाइए। सो हु इज गोइंग टू ईट बाकी का आधा? बाकी ये क्या करेंगे, यस। नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट कि मिक्स फ्रूट प्लेटर ले हाँ, सकते हैं that या is, नहीं? yeah, बिल्कुल that ले is allowed. सकते, ले बिल्कुल सकते ले हैं ना? सकते। अच्छा होता है जी, ना, कोई फ्रूट का ग्लाइसेमिक लो होता है, कोई का हाई होता है, तो आप बैलेंस कर लेते हो। यस। तो बस वही कंफर्म करना था। या बस, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, शायद जो मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि लाइक अगर किसी का किडनी का पैरामीटर्स कुछ इधर उधर है तो उसके अकॉर्डिंगली पोटेशियम रिच वाले फूड थोड़ा अवॉइड कर ले, तो पोटेशियम ऐसा रिच, कुछ हल्का बिल्कुल सा बिल्कुल देखते हैं। सही, बिल्कुल या सही, नो पोटेशियम रिच फ्रूट। तो हम्म। प्राइमरली मैं बनाना, वही अपना बनाना कह रही हूँ, हाँ सॉरी, पपाया, एप्पल, हाँ, गुआवा, यही आते हैं ना लो या पोटेशियम। जी। कोई स्पेसिफिक ऑयल वगैरह भी कुछ होता है कि मैम कि ये पर्टिकुलर ऑयल ही ले, वो कुछ फैट इनटेक में? लॉन्ग टर्म में नहीं। 1 चम्मच हम्म देसी घी, एक हम्म, चम्मच ऑलिव ऑयल, और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, कितनी कैलोरीज होती हैं? 1 चम्मच देसी घी में कितनी कैलोरीज होती हैं? 45। 45 हाँ मैम। सेम ही है, 45। कैलोरी इतने तो सारे 45। इतना ही है, डाइटिशियन बैठ के सोच क्यों रहे हो? कैलोरी तो इक्वल ही हाँ है, हाँ, वही क्यों इतना एकदम हाँ, से। 45। 12 is एक equal जब to आपने चम्मच इतने 45। इतने स्टाइल से पूछा ना कि वो सब लोग सोचने लगे ऐसे क्या पूछ रहे हैं। नहीं, तो सिर्फ वो तो मुझे सब लगा कि इक्वल ही है। तीनों को मिलाने ना लग जाओ। एक हाँ, चम्मच ऑलिव ऑयल में कितनी कैलोरीज होती हैं? 45। एक 45। चम्मच रिफाइंड ऑयल में कितनी कैलोरीज होती है? 45। एक इक्वल चम्मच घी में 45। कितनी होती है? या अराउंड 45। 135 ठीक सबका है, सेम। ओनली नेचर ऑफ ऑयल डिफरेंट है। तो यस। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो हम बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं देना चाहते, खाली मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड पे वर्क करते हैं। लेकिन हम्म। अगर कोई वेजिटेरियन है तो हम उनको सैचुरेटेड फैट भी देते हैं, स्पेशली घी हम्म and refined oil, sunflower oil or canola oil or something like that. And for mono unsaturated oil, Indian recipes में मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा जाता है, पीनट ऑयल जाता है, सिसमी सीड ऑयल है, कुछ भी जो भी उनके घर में यूज होता हो हम्म। वही बेस्ट है। हम्म। I remember when I was staying in Saket, one of my known invited me, and they were making puris in olive oil. Said आपके लिए olive oil में पूरी बना रहे हैं। मैंने कहा भाई, ऑलिव ऑयल टेम्परेचर सेंसिटिव ऑयल है, आप जिसको पूरी बना रहे हो तो आप ऑयल ही पूरा रेंसिड कर दे रहे हो, यू नो। हम्म। सो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑलिव ऑयल अच्छा मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, लेकिन हमारे खाने में हम जिस तरीके की कुकिंग करते हैं, हम लोग स्टर नहीं करते ना, हम लोग सब्जी हम्म छौंक देते हैं, कवर कर देते हैं, गैस में हम्म चल रही है 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो उससे ऑयल डीनेचर हो जाता है। ठीक हम्म। है। अब ऑलिव ऑयल की क्वालिटीज हमें पता है, तो हम उसको बोलते हैं अच्छा सैलेड में डाल लो आप, वर्जिन ऑयल है तो आप सैलेड में यूज कर लीजिए। तो हम्म। भाई हम दाल में भी ऑयल, चिकनाई डाल रहे हैं, सब्जी में भी डाल रहे हैं, रोटी में भी थोड़ा सा घी लगा ही लेते हैं, और हमने सैलेड में भी डाल दिया ऑलिव ऑयल।
तो हमारा पोर्शन ऑफ फैट काफी एक्सीड हो गया ना, जी, तो वो चीज का अपने को ध्यान रखना है. All oil are good, only we need to understand which family they belongs to and what should be the intake according to the weight. राइट. ठीक है, लाइक वेरी साउथ नाइस. इंडियन हमारे साथ नीनू है यहाँ पर, केरला से है, तो उनका कोकोनट ओह ऑयल के वाह. बिना काम नहीं चलता है ना. आज हमारे हाँ, तो कोकोनट इज अ सैचुरेटेड ऑयल, या है ना. तो इसीलिए ये लोग घी यूज नहीं करते हैं, तो इक्वल हो गया वो, इट्स ओके. बटर घी ये लोग कम यूज कर रहे हैं. जी जी जी, वो कोकोनट ऑयल ज्यादा प्रेफर करते हैं यस उनके वहां यस. पर. हाँ तो ठीक है, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड. और इंडियन में मैंने देखा है कि नॉन वेजिटेरियन इंटेक है भी, तो बहुत ज्यादा नहीं होता. जी. मतलब if you look at Afghanistan, look at Americans, look at UK, यूरोपियन कंट्रीज, उनके तो हर मील में नॉनवेज होता है ना. अपने यहाँ कितने होता है, अगर नॉनवेज खा भी रहे हैं तो हफ्ते में 15 दिन में, है ना. तो इस करके अपना सैचुरेटेड फैट वी कैन यूज दैट. यस. ठीक है. Okay, ओके. great. एंड Lovely talking to all these girls. Thank you so much. Thank you, ma'am. thank you so much, Manju Di, and nice Thank to you, connect Archana. again after a long time. Definitely. Seriously. After many years, I think, yes, है ना. Yeah, I'm And sure. Dr. Ashok is also here, and he is Oh, also lovely. waiting and listening us. Dr. Oh, Ashok, sir. Yeah, thank you so much, sir. Good Have evening. Am I audible? yes, yes, sir. Okay, Thank perfect. you for your patient hearing, sir. Silently, we great. were listening all the Hmm. dietitians over here. No, I listened to many things. I think I grabbed something out of it. Right. And Thank Thank you you, so much, Dr. sir. Ashok. Thank you so much. yeah, thank you, ma'am. Thank you. So